let's continue our discussion with relation where we left. We have already discussed relations, the ordered pair. In case you don't know, I will recommend you to go to intermediate books and find out algebra specifically, the basic set theory. I assume we have already covered ordered pair. In case there are two sets, so ordered pair or Cartesian product of these two sets is an ordered pair. Okay, so each element is covered with other all the other elements of the second set, and similarly with the second elements. So this is our ordered paired and relations. Okay, so relation is basically subset of Cartesian product of two sets. So a relation on two sets is defined as subset of Cartesian products of two sets. Now, how to we have already know that definition of subset. Basically, some elements of the set has been taken into another smaller set, which is known as subset of that previous set. Okay, so the moot point is, the big question is how to find out the subset in order to justify a relation. Okay, so relation clearly defines the relation between two sets of an individual ordered pair. Okay, so for example, here we can take an element 1 and 2, which is an nothing but ordered pair of the Cartesian product, the first element in fact of the Cartesian product. Okay, so in order to define equality, we are considering only those ordered pair that are equal. Okay, so means two elements of an ordered pair are equal to each other, only they will have to be kept in a subset, that is saying, that is justifying an equal relation or equality relation. Similarly, similarly, if we are considering less than relation, then the first element means E1, E1 must be less than the second element of the ordered pair, means E2. So which of the elements will satisfy this condition, that have to be put into this subset. Okay, so for example, the first element will be brought down here. Similarly, the second one, the third one, this will not be brought in here because they are both equal, which is not satisfying this particular relation. Similarly, 2 3, no, 3 is okay, yeah, this will be satisfied down here. 2 4, obviously. 3 2, no, the first element is greater than the second element, so this will not be brought down into less than relation. Obviously 3 3 will not be, and 3 4. So we have already we understood what is a relation, basically subset of Cartesian product of two sets being considered to be find out the relation lies between them. So let us continue our discussion further. So here we have some operations that are going to be useful down here. Okay, so a relation that we already have defined is subset of Cartesian product between two sets, and let us suppose that R1, R2 and R3 be the relations from A to B. Okay, so R complement is what? R complement is what? Here, since we are discussing the complement, the universal set in this case becomes equal to A cross B, means Cartesian product between the two sets. Okay, so in order to find out R complement, we'll have to converse our relationship. So less than become greater than, equal to becomes not equal to, and
so on. So if a Cartesian product is Cartesian product, a pair AB is present in R, then that will not be present in R complement. Okay. So here, in this way, we have defined R complement. Similarly, in order to find out R1 intersection R2, we'll have to keep only those ordered pair which are present in R1 and R2 simultaneously. What about R union, R1 union R2? We'll have to simply put all those ordered pair which are present in either of R1 and R2 or both. Okay, so this R1 union R2 is also a set of ordered pair. So each duplicate element have to be written only once. Okay, so we have already know what is domain and range. We don't have to redefine itself again. So domain of R means domain of relationship is set of all first coordinate that are subset of A, and range is all of the second coordinate that are subset of B. Okay. So what is inverse relation? Inverse relation, we simply invert those ordered pair. Means R inverse is R inverse becomes subset of B cross A, because R was subset of A cross B. So we invert those positions. Means in terms of ordered pair, if previously it was AB, if previously it was AB, now it will be BA. Okay. So in this way, we find out inverse relation. So one very good numerical question is, suppose actually not very good, but it has been a repeated pattern of the GATE examination since they ask this question with various numerical values. So if you are given the cardinality of both the sets, then you sometimes you are asked to find out the number of relations from A to B. Okay, number of relations that exist from A to B. So how many number of relations that may exist from A to B is nothing but the subset of Cartesian product, the total number of subset of Cartesian product of A cross B, which is power set of A cross B. Now you don't ask what is the power set of A cross B. Okay, so it is 2 to the power m into n. Okay. Now, how many relations from A to A if the cardinality of A has been given? Okay, so it is what? 2 to the power n cross n, means 2 to the power n square. Okay, so they ask these kind of question with in a repeated manner with different numerical values. Now, one thing is composite relation. So, what is a composite relation? Suppose we have been given three sets, okay, A, B, and C, and there is a relation R from A to B, and there is a relation from B to C, which is S. Okay, so composite relation is combining these two relations into one. Okay, so this is known as RS. And how do we define such a composite relation? Is nothing but subset of A cross B. And now since B has been eliminated here, okay, so we have already said that R is a subset of Cartesian product of A and A cross B, and S be the subset of Cartesian product of B and C. But you can see that RS is a subset of Cartesian product of A and C. So how did we get rid of B? So it's nothing but, let us define in a set form. Okay. So suppose RS is what? Ordered pair AC such that there exists B from the set B that we have eliminated, such that AB belongs to R and BC belongs to S. Okay.
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आर में यानी पहले सेट में कोई रिलेशन है ए बी, ठीक है, जिसका सेकेंड पार्ट जो है, जिसका सेकेंड पार्ट यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड पार्ट यानी कि बी दूसरे सेट एस में बिलोंग करता है, यानी कि यहां, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से बी को गायब करके इन बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं इनको कंबाइन कर देंगे। तो अभी आपको समझ में आया हाउ डिड वी गेट ए एंड सी, ठीक है। तो ए के साथ बी रहा होगा, ए के साथ यहाँ पे बी रहा होगा, ए एंड बी मस्ट हैव बीन पार्ट ऑफ आर, और दूसरे में एस में बी और सी कोई एलिमेंट होगा, ठीक है। अब जब हम इनका कंपोजिट रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो हम ऐसे एलिमेंट ढूंढेंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढेंगे जिसमें से कि जो फर्स्ट रिलेशन का जो सेकेंड पार्ट है ऑर्डर्ड पेयर का, वो कहीं अपीयर हो रहा होगा एज अ फर्स्ट पार्ट इन द सेकेंड रिलेशन, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, और बाकी जो दो बचे हुए एलिमेंट है यानी कि ए और सी उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अभी आपको प्रोसेस समझ में आ गया, हाउ टू फाइंड कंपोजिट रिलेशन। ओके, लेट अस कंटिन्यू फर्दर। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है आपको कि कैसे हम डिफरेंट सेट फॉर्म करेंगे। तो सपोज वी हैव बीन गिवन सेट ए बी एंड सी, ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है। लेट अस सपोज ये आपका कोई पर्टिकुलर रिलेशन है आर, ठीक है, ऑन ए क्रॉस बी, ठीक है। तो आर कोई रिलेशन है जो हमें नहीं पता कि किस रिलेशन के बेसिस पे दिस ऑर्डर पेयर हैव बीन सेलेक्टेड, ठीक है, बट कुछ है, ठीक है। लेट अस सपोज आर्बिट्रली कोई रिलेशन है, और एस ऐसे ही कोई रिलेशन है बी क्रॉस सी पे, ठीक है। तो आर एस कैसे मिलेगा हमें, लेट अस सी दैट। तो अगर हम पहले एलिमेंट को कंसीडर करते हैं 1 2, तो हम देखेंगे कि इसका सेकेंड पार्ट जो है वो एस में कहाँ अपीयर हो रहा है, तो यहाँ पे अपीयर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अपीयर हो रहा है, और कहीं पे नहीं, इन दोनों में नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, ऐसे दोनों ही सेट के लिए हमें एलिमेंट फॉर्म करने होंगे, यानी कि इसमें 1 तो सेम रहेगा, बट 2 की जगह पे यहाँ पे 4 और 5 हमें दो एलिमेंट मिले, तो यहाँ पे 1 4 एंड 1 5, ठीक है। इन दोनों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, इन दोनों को ही हमें नए कंपोजिट रिलेशन में रखना पड़ेगा। सिमिलरली 1 4 का देखें तो 4 कहाँ अपीयर हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो 1 और 5, 1 5 एक साथ आ गया, ठीक है, 1 5 एक साथ आ गया और उसको हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। सिमिलरली 2 3 में 3 हम ढूंढेंगे, जस्ट इसके नीचे है 2 3, तो यहाँ पे 2 3 के साथ में क्या आएगा 2 6, ठीक है। वाई 2 6 हैव बीन नॉट पार्ट ऑफ इट, ठीक है, तो 2 6 भी आएगा, समथिंग आई हैव मिस्ड, 2 6 भी इसी सेट का पार्ट होगा, तो लिखते समय शायद मे बी आई मेड अ मिस्टेक। और 2 4 देखेंगे, 2 4 कहाँ आएगा, 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 5 भी आएगा, ठीक है। बट 2 5 ऑलरेडी एक बार कवर, सॉरी 1 5 कवर हो चुका था यहाँ पे, सॉरी ये पिछली बार में जाएगा, और 2 5 यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद क्या आएगा 3 3, तो हमें कोई तीसरा एलिमेंट 3 नहीं दिख रहा है, मे बी दिस 3 वॉज 6, ठीक है। तो कोई गलती नहीं हुई है, बस गलती ये हुई है कि यहाँ पे 2 होना चाहिए था, उसको हमने 6 लिख दिया, ओके। सो this all was correct except from the fact that these 3 have been 2, must be 2, ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं, देयर आर सम मोर एग्जांपल्स में क्या किया हमने यहाँ पे, एक ही सेट पे लिमिटेड रखा, कोई सेट हमने ले लिया, ठीक है। अब वो सेम सेट पे डिफाइंड है, कोई रिलेशन हमने कंसीडर किया तो कि सेम सेट पे डिफाइंड है, तो मान लो हमने हमारे पास है वी हैव ए, ठीक है। तो ए क्रॉस ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, जितने भी ऑर्डर पेयर निकलेंगे, और एम्प्टी रिलेशन ऑन ए क्या हुआ, एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, सिंपली नल सेट, ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप उसको या तो सिंगल फाई के साथ लिखते हैं या फिर नथिंग इन अ ब्रैकेट, ठीक है। इक्वल रिलेशन क्या होता है, इक्वल रिलेशन आपको बताया था क्या होता है, 1 1 2 2,
जिसमें दोनों ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट सेम हो, ठीक है। लेस देन आपको बताया था क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से छोटा होगा, इक्वल टू नहीं देखना है, लेस देन और इक्वल टू की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ओनली लेस देन। तो ये हो गया आपका सम सेट, सम रिलेशन ऑन अ सिंगल सेट, ठीक है। उसके बाद बताने की जरूरत नहीं है, दीज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर ग्रेटर देन क्या होगा, तो ग्रेटर देन किया तो फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट, लेस देन और इक्वल टू क्या किया तो क्या करेंगे, लेस देन वाले सेट, लेस देन वाले रिलेशन और इक्वल टू वाले रिलेशन दोनों का यूनियन ले लेंगे, ठीक है। सिमिलरली ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात आई तो क्या करेंगे, ग्रेटर देन वाले रिलेशन को और इक्वल टू वाले रिलेशन दोनों को मर्ज कर देंगे, ठीक है, दोनों का यूनियन ले लेंगे, ठीक है। डिवीजन वाले सेट में क्या करेंगे, अच्छा डिवीजन वाला सेट, डिवीजन का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट, ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, जिसमें से कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाला सेकंड को डिवाइड करता है, ठीक है। डिवाइड करता मतलब कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो फॉर एग्जांपल कोई भी सेम सेम नंबर अपने आप को तो डिवाइड करेगा ही, ठीक। तो वन वन तो सबको डिवाइड करता है, ठीक है, ये हमें पता ही है। टू आप इसको डिवाइड करेगा, टू फोर को भी डिवाइड करेगा, थ्री थ्री को डिवाइड करेगा और फोर फोर को डिवाइड करेगा। इसके अलावा यू वोंट फाइंड एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। सिंपली मल्टीपल ऑफ क्या होगा, मल्टीपल ऑफ का मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट इज द मल्टीपल ऑफ सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो वन इज अ मल्टीपल ऑफ वन, टू इज अ मल्टीपल ऑफ टू, टू इज अ मल्टीपल ऑफ वन, थ्री इज अ मल्टीपल ऑफ वन, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया। So these are some very basic relations on a single set. ठीक है, let us try to find out the various types of relations. ठीक है, so here we have relationship types, types of relations, types of relations। टाइप्स ऑफ रिलेशन में एक हो गया आपका रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ठीक है, और इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी हम इनको एक एक करके देखते हैं। सो लेट अस डिफाइन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो गया, first of all it is a relation, so subset of Cartesian product of one or two sets, ठीक है। अब ये सिंगल सेट पे डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है कि इफ ए if ordered pair AA belongs to R for all A's present in a set। इसका मतलब क्या है, A के सारे एलिमेंट्स के लिए अगर हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें A के जितने भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल सपोज करो हम ये सेट कंसीडर करते हैं लेफ्ट पेज पे, ठीक है, 1 2 3 4। तो ऐसा रिलेशन जिसमें A के सारे एलिमेंट यानी कि 1 2 3 4 के लिए हमारे पास इस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर हैं, यानी कि 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, ए के सारे एलिमेंट्स के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन है तो हम उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक है। तो सपोज करो इसी सेट को हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे हो गया, क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेट अस सी दैट। तो ए के कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, वी हैव 1 1 2 2 3 3 एंड 4 3, 4 3 होगा क्या, नहीं। अब अगर यहाँ पे 4 4 होता तो हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते थे, बट चूंकि यहाँ पे 4 4 नहीं था तो हम इसे कहेंगे क्या, इररिफ्लेक्सिव। आगे डिफाइन करते हैं, ओके। सो हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें से 4 4 इज मिसिंग, ठीक है, 4 4 इज मिसिंग। तो हम इसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कह सकते बिकॉज दिस ऑर्डर्ड पेयर्ड रिलेशन डजंट होल्ड फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। 4 के लिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, ऑब्वियसली ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद दैट सेल्फ, ए क्रॉस ए। क्यों, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 ये भी आएंगे और बाकी के यानी कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे, तो इसलिए ये तो रिफ्लेक्सिव हो गई। ये क्या है, अभी आपको बताया था
इक्वल रिलेशन ये होगा, लेस देन और इक्वल टू ये होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये हो गया, डिवाइड और मल्टीपल ऑफ भी होंगे। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट आपको अपने आप को डिवाइड करेगा और हर एलिमेंट अपने आप का मल्टीपल है, ठीक है। और चूंकि लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू में इक्वल टू भी है, इसलिए हर एलिमेंट अपने आप में आएगा ही। तो इसका कन्वर्स देखें तो कौन कौन से एलिमेंट रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे, तो लेस देन, ग्रेटर देन और नल, ये आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं है, ठीक। अब इसका मतलब ये नहीं है कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या वो इररिफ्लेक्सिव होगा, लेट अस सी दैट। तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, दिस मस्ट बी होल्ड। इसका मतलब क्या है? ए मस्ट नॉट बी पार्ट ऑफ दैट रिलेशनशिप, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं रिलेशन विच इज नॉट रिफ्लेक्सिव कैन इट बी कॉल्ड डेफिनेटली एज इररिफ्लेक्सिव? नो। क्यों? आप यहाँ पे देखो, डिवीजन एंड मल्टीपल ऑफ, ठीक है, इसमें भी यस है और इसमें भी यस है, ठीक है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी हैं और इररिफ्लेक्सिव भी हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने सीधे सीधे ये कंडीशन रखी है, ठीक है। क्या है इस कंडीशन का मतलब? क्या है कि अगर सारे एलिमेंट नहीं है प्रेजेंट तो हम उसको इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं, ठीक। अच्छा, लेट अस सी some more relations. Okay, so third one is symmetric. Symmetric का मतलब क्या हुआ कि if in a relation AB exists then BA must also be exist, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 4 3 अगर एग्जिस्ट करता है उस किसी पर्टिकुलर रिलेशन में, तो 3 4 भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा। अगर ये स्थिति है तो हम उसको बोल सकते हैं दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो एक क्रॉस ए ऑब्वियसली ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 है, ठीक है, 1 1 है, तो 1 का सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्री क्या होगा, कैसे फुलफिल होगी, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सपोज 2 4 है तो 4 2 भी होना चाहिए, ठीक है। तो ए क्रॉस ए में तो सब कुछ ही होता है, इसलिए ये है, ठीक है। दूसरा सेट नल सेट। नल से ये आप देखो ध्यान से इन द डेफिनेशन दैट अगर ए बी प्रेजेंट है देन ओनली वी आर रिक्वायर्ड टू हैव बी ए। अगर ए बी ही नहीं है तो बी ए रखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए फाई या नल सेट भी सिमेट्रिक सेट कहा जाएगा। इक्वल टू सेट या इक्वालिटी रिलेशन क्या हम इसको कह सकते हैं सिमेट्रिक? ऑब्वियसली। फिर उस केस में आपको सिर्फ उसी सिंगल एलिमेंट को रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 1 है तो इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका मिरर इमेज क्या होगा, 1 1, जो कि सेम एलिमेंट होगा। और एक एलिमेंट को हम एक से ज्यादा बार नहीं लिखते हैं इन अ सेट, तो ये भी आपका होल्ड करेगा, ठीक है। और कौन कौन से नहीं है? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर अगर 4 डिवाइड करता है 2 को, तो क्या 2 भी 4 को डिवाइड करता है? नहीं। सिमिलरली मल्टीपल ऑफ भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब सिमिलरली हम आते हैं एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में आप ध्यान से देखिए, सिर्फ इतनी सी बात लिखी गई है, इफ ए बी इज अ पार्ट ऑफ आर यानी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए मस्ट नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इसमें आपका 5 भी आएगा, इसमें आपका लेस देन भी आएगा और इसमें आपका ग्रेटर देन आएगा। फिर आपको बता रहा हूँ कोई रिलेशन, तो इससे एक आपका 1.1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है गेट वगैरह में। इफ अ रिलेशन इज सिमेट्रिक देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज एसिमेट्रिक। क्या ये ट्रू है? कैन अ रिलेशन बी बोथ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एट द सेम टाइम? ऑफ कोर्स, यहाँ हमने देखा हुआ है। क्या? नल सेट। ओके, सो ये आप डेफिनेशंस बहुत ध्यान में रखिए। ओके, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का ही सिमेट्रिक आपने देख ली, एसिमेट्रिक देख लिया, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक इज अ वेरी ट्रिकी कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। इसमें ये लिखा गया है, इफ ए बी इज अ पार्ट ऑफ आर, यानी ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी किसी रिलेशन का पार्ट है, बी ए भी उसी रिलेशन का पार्ट है, देन ए मस्ट बी इक्वल्स टू बी, ठीक है, वेयर ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब क्या है, अगर कोई एलिमेंट है, कोई दो एलिमेंट है ए बी और बी है, दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो फॉर दैट रिलेशन टू बी एंटी सिमेट्रिक ए और बी दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये है, सो वी हैव 1 1, ठीक है, और उसका आप कन्वर्स कर लो अदर 1 1, ठीक है। अब दोनों को सिमेट्रिक बनाने के लिए इफ ए बी एंड बी ए बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है, इन दैट केस ए मस्ट बी इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है, 1 1 के केस में भी दिख रहा है, 2 2 के केस में भी दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो 1 2 है, तो क्या 2 1 भी है? नहीं, 2 1 नहीं है, तो इसलिए ये आपका सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। बट इजंट दैट डेफिनेशन फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो छोटा सा ट्रिक ये है कि यहाँ पे फॉर नॉट फॉर ऑल एलिमेंट, नॉट फॉर वेयर, यहाँ पे ये चीज नहीं लिखी गई है, यानी कि ए के सभी एलिमेंट्स के लिए ये ट्रू नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी, दिस मस्ट होल्ड्स गुड फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर 1 1 है तो रहे, नहीं है तो ना रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 2 है तो रहे, नहीं है तो ना रहे, ठीक है। तो आपने देखा होगा ऊपर जो हमने सेट लिया था उसमें 3 और 4 भी थे, बट यहाँ 3 और 4 का कोई जिक्र है नहीं है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, 1 2 3 4 ये सबके लिए होल्ड करना चाहिए, यानी कि 1 1 भी होना चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, और 4 4 भी होना चाहिए। बट इन केस ऑफ एंटी सिमेट्रिक देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। 1 1 प्रेजेंट है तो रहे, नहीं है तो ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 2 प्रेजेंट है तो रहे, ना है तो ना रहे, ठीक है। इसीलिए आप देखो यहाँ पे डेफिनेशन, इफ दिस ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, और इसका इनवर्स बिलोंग करता है आर से, देन दीज बोथ एलिमेंट आर इक्वल, मस्ट बी इक्वल, ठीक है। ये हो गया आपका एंटी सिमेट्री। और बाय डेफिनेशन हर एक सिमेट्रिक एसिमेट्रिक रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। Now, the transitive relation. We have already covered composition, ठीक है। कंपोजिट रिलेशन क्या होता है, तो उसी के बेसिस पे let us try to find out what is a transitive relation. According to definition, transitive relation का definition के according, if AB belongs to R, BC also belongs to R, then AC must belongs to R, ठीक है। वेयर ए बी सी तीनों एलिमेंट जो है ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो कंपोजिट सेट है, जो इनका कंपोजिट सेट होगा, उसका आप यूनियन ले लो वर्तमान सेट के साथ, ठीक है, वही हो गया। तो अगर ए बी प्रेजेंट है, बी सी प्रेजेंट है, तो ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। दिस इज व्हाट कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। तो यहाँ पे वही कहानी, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन को भी आप इस द रिलेशनशिप अंडर कंसिडरेशन, इसी के साथ आप यूनियन ले लोगे तो योर रिलेशन बिकम ट्रांजिटिव। तो कौन कौन से ऐसे रिलेशंस हैं फेमस वाले जो ट्रांजिटिविटी को सपोर्ट करते हैं? ऑब्वियसली दिस रिलेशन सपोर्ट करेगा, ये रिलेशन सपोर्ट करेगा, इक्वल टू सपोर्ट करेगा। कैसे इक्वल टू कैसे सपोर्ट करेगा? बाई एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। लेस देन ये भी आपका ट्रांजिटिव होगा, ग्रेटर देन ये भी ट्रांजिटिव होगा। लेस देन क्यों ट्रांजिटिव होगा? इफ एनी एलिमेंट इज लेस, इफ ए इज लेस देन बी, if a is less than b and b is less than c, okay, then a is also less than c। समझ में आ गया? सिमिलरली इनका चूंकि इक्वल टू इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिटिव, तो आप कह सकते हो कि लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू भी इसका पार्ट होगा। सिमिलरली सेम लॉजिक से आपका डिवीजन और मल्टीपल आप भी ट्रांजिटिव रिलेशंस होंगे, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर दिस टेबल, ठीक है। मान लो वी हैव आर R1 एंड R2 बी अ रिलेशन ऑन ए, ठीक है। तो आर इनवर्स, ठीक है, आर कोई रिलेशन होगा ऑन अ सेट, ठीक है। क्या आर इनवर्स रिफ्लेक्सिव होगा? यस। कैसे रिफ्लेक्सिव होगा? क्योंकि आर अगर अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा। कैसे?
कैसे होगा? आर इनवर्स कैसे होगा? हमने देखा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की क्या डेफिनेशन है? हर एलिमेंट के लिए ये ट्रू होना चाहिए। आर इनवर्स, इनवर्स हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। इन केस यू डोंट रिमेंबर, आई रिक्वेस्ट यू टू गो ओवर द वीडियो, या मैं ही आपको दिखा देता हूँ। वेयर इज दैट? ओके, तो आई थिंक हमने इनवर्स रिलेशन कवर किया हुआ है ना। इनवर्स रिलेशन, हियर इट इज। इनवर्स रिलेशन में हमने क्या किया है, यहाँ पे सेट की पोलैरिटी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। यानी कि अगर R was the subset of A cross B, then R inverse becomes the subset of B cross A. ओके, तो इस हिसाब से अब आई थिंक यू रिमेंबर, सो लेट अस सी, just a moment. Okay, so in this way आपको पता है, इफ R was रिफ्लेक्सिव, R इनवर्स आपका रिफ्लेक्सिव होगा, इररिफ्लेक्सिव भी होगा, ठीक है, सिमेट्रिक भी होगा और एसिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि R भी वैसा ही सेट था, ठीक है। इन द सिमिलर वे, इफ R was एंटीसिमेट्रिक, देन R इनवर्स विल बी आल्सो बी एंटीसिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी का भी सेम पैमाना है, ठीक है। और इंटरसेक्शन में अगर कोई रिलेशन R1 रिफ्लेक्सिव है और R2 रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, इसका मतलब दोनों में वैसे भी सारे एलिमेंट आ गए, तो जब आप उसका इंटरसेक्शन लोगे तो उसमें भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। रिफ्लेक्सिव के केस में भी सेम लॉजिक है, सिमेट्रिक भी सेम लॉजिक है, एसिमेट्रिक भी सेम लॉजिक है, एंटी सिमेट्रिक भी सेम लॉजिक है, ट्रांजिटिविटी में भी सेम लॉजिक है, ठीक। अब यूनियन की बात करते हैं। सो इफ R1 R2 बोथ आर रिफ्लेक्सिव, तो उनका यूनियन भी रिफ्लेक्सिव होगा। इररिफ्लेक्सिव की भी वही कहानी है, ठीक है। इसमें सारे एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, सेम रीजनिंग। सिमेट्रिक तक ठीक है। एसिमेट्रिक के लिए क्या होगा? एसिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात नहीं होनी है, यूनियन की बात हो रही है। तो मान लो अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है इंटरसेक्शन सिमेट्रिक के लिए? और मान लो इसमें बी ए, इसमें, अच्छा, इसमें ए बी प्रेजेंट है और इसमें ए बी बी ए दोनों प्रेजेंट हैं। that reasoning is fallacious. Let me find out some. Okay, so transitive, एसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों इसमें होल्ड नहीं करेंगे। क्यों? फाइंड आउट एंड लेट अस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, किसी को अगर रीजनिंग मिलती है तो। अदरवाइज मैं बताऊंगा आपको डाउट क्लियरिंग क्लास में। ओके, सो दिस इज अनदर गेट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन गेट वगैरह में आते रहते हैं रिपीटेडली, मेनी अ टाइम, कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सो यू हैव बीन गिवन अ सेट विद अ कार्डिनैलिटी n। अब आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी रिलेशंस, हाउ मेनी टोटल रिलेशन होल्ड्स ऑन दिस पर्टिकुलर सेट, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव, हाउ मेनी इररिफ्लेक्सिव, हाउ मेनी सिमेट्रिक, हाउ मेनी एंटीसिमेट्रिक एंड हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब अभी तो आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यू दिख रही है, इसकी रीजनिंग क्या होगी विल कवर दिस इन फर्दर लेक्चर, ठीक है। ये देखने में कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा एंड यू माइट फील दैट आई हैव टू मेमोराइज एवरीथिंग, बट इट इज नॉट द केस, ठीक है। कैसे रीजनिंग होगी इसकी, वी विल सी दिस। ओके, सो सपोज करो आपके पास यू हैव बीन गिवन दिस सेट, ठीक है। सेट में आपके दो एलिमेंट हैं, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाल लिया है, ठीक है। उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। अब लेट अस सी हाउ टोटल रिलेशन वर्क्स। टोटल रिलेशन हमने देखा ही है, एक सेट के लिए टोटल रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेटअप में आप देख सकते हो कि हमारे पास अगर सेट की कार्डिनैलिटी थी n, तो हमारे पास n स्क्वायर एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है।
तो हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए इज एन स्क्वायर, ठीक है। और आपने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या देखा, पावर सेट ऑफ दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने हमारे कितने एलिमेंट्स थे, एन स्क्वायर, एन इंटू एन, और उसका पावर सेट हो गया 2 पावर एन स्क्वायर। तो ये रीजनिंग हो गई आपकी टोटल रिलेशन की, ठीक है। तो वी हैव फाउंड आउट हाउ मेनी टोटल रिलेशन दैट होल्ड्स ऑन अ पर्टिकुलर सेट। नाउ लेट अस कंसीडर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बहुत ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, वी कांट टच एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक है। दीज मस्ट बी प्रेजेंट इन द दीज 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 एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन द रिलेशंस, ठीक है। तो आपके पास टोटल एलिमेंट थे एन स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर मान लो हमारे पास n एलिमेंट है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 m n n, ये सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, दीज मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रेजेंट के लिए हमने इसको 1 से मार्क कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सिंगल चॉइस थी, मतलब सिंगल चॉइस का मतलब हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि विच ऑफ द एलिमेंट can have the choices either to be present in the relation or not to be present in the relation। तो यहाँ पे हमारे पास just one choice है, they must be present, ठीक है, they must be present, इनके एब्सेंस होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आपके पास रिमेनिंग कितने एलिमेंट बने, टोटल थे एन स्क्वायर, जिसमें से एन, तो हम एन एलिमेंट ऐसे हैं जो प्रेजेंट ही होने चाहिए, तो बाकी कितने एलिमेंट बचे, एन स्क्वायर माइनस एन, इसका आप कॉमन ले लोगे n, तो ये दिस विल बिकम n माइनस वन, n इंटू n माइनस वन, ठीक है। अब इन बाकी के एलिमेंट्स के लिए आपके पास चॉइस है, दो चॉइसेस हैं, आइदर दे कैन बी प्रेजेंट इन द रिलेशन और दे मे नॉट, ठीक है, दे मे चूज टू बी आउट ऑफ द रिलेशनशिप। बट इनके साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इनके साथ ऐसा नहीं है, तो उस पर हम कुछ कर भी नहीं सकते, सिंगल चॉइस। अब बाकी के सेट पे हम क्या करेंगे, पावर लगा देंगे 2 पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, विच इज इक्वल टू राइटिंग 2 पावर n इंटू 2 पावर n इंटू n माइनस वन। तो these many number of reflexive relations holds on a set with the cardinality m, ठीक है। अब अगर हम इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस की बात करें, तो जितने के जितने ये n एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है, विथ ओनली वन चॉइस, ठीक है, इनको प्रेजेंट होना है, रीजनिंग जस्ट रिवर्स हो जाएगी, दे दे मस्ट नॉट बी पार्ट ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे n जो है वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 n, ये पिक्चर से बाहर होंगे, ठीक है। तो ये बाहर हो जाएंगे, यानी कि इनके लिए सिर्फ एक चॉइस आउट, ठीक है। बाकी बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं एन स्क्वायर माइनस एन, उनके लिए अभी भी आपकी सेम रीजनिंग हो गई, यानी कि दे मे बी पार्ट ऑफ रिलेशन और दे मे नॉट बी, ठीक है। तो ये हो गया, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट विद कार्डिनैलिटी। अब एसिमेट्रिक के केस में देखते हैं, सिमेट्रिक के केस में देखते हैं। सिमेट्रिक थोड़ा सा आप देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। तो हमारे पास ये n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब सिमेट्रिक के केस में क्या होगा, 1 1 मे बी पार्ट ऑफ इट, 2 2 मे नॉट बी पार्ट ऑफ इट, 3 3 मे बी पार्ट ऑफ इट, 4 4 मे नॉट बी पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो ये हो गए आपके कैसे। अब यहाँ पे आपको इनको रखने की दो चॉइसेस हैं, आइदर दे कुड बी पार्ट ऑफ योर सिमेट्रिक रिलेशन और दे मे नॉट बी। तो इसके लिए हमारे पास n एलिमेंट्स के लिए क्या रीजनिंग हो गई, कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे इसके 2 पावर n, ठीक। बाकी बचे हुए जो हमारे पास पेयर्स हैं, पेयर्स कितने होंगे, हमारे पास n एलिमेंट्स हो गए और टोटल थे n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर एलिमेंट। तो हमारे पास पेयर, क्योंकि सिमेट्रिक के साथ पेयरिंग इन्वॉल्व होती है, क्यों, अगर ए बी इज पार्ट ऑफ योर सिमेट्रिक रिलेशन देन बी ए मस्ट ऑल्सो बी पार्ट ऑफ योर सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पेयरिंग हमें करनी पड़ रही है, तो इसलिए हमने इसको बाय 2 कर दिया। तो अब इतने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे, इतने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 1 2 एंड 2 1, इट इज अ पेयर। अब अगर 1 2 प्रेजेंट है सिमेट्रिक रिलेशन में,
अगर ये सिमेट्रिक रिलेशन है और 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर 1 2 प्रेजेंट नहीं है, अगर 1 2 प्रेजेंट नहीं है तो 2 1 भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि इस एक सिंगल पेयर ऑफ पेयर्स के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस हैं, ठीक है, और उसमें से 2 हमारे फेवर में है। यानी कि अगर ऊपर वाला ये दोनों होल्ड करता है तो हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब इस 4 में से 2 चॉइसेस ऐसी हैं जो आपको सिमेट्रिक रिलेशंस की राह पे आगे ले जाती हैं, और बाकी के 2 चॉइसेस जो हैं वो आपके इस रिलेशन को सिमेट्रिक होने से बनने से रोकती हैं। यानी कि अब इन पेयर्स में से जो 2 2 के आपने पेयर बनाए हैं, तो कितने नंबर ऑफ पेयर बनाए आपने, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, और इसमें से हर पेयर के लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। तो इसको हमने चढ़ा दिया 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। अब टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो गए, ये तो 2 चॉइसेस वाले हो गए, 2 चॉइसेस यानी 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, और बाकी ये जो आपके ऑप्शनल पोर्शन है, ये चाहे तो रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो गए, इन जस्ट, क्योंकि इनका बेस सेम है तो आप पावर्स को ऐड कर सकते हो। पावर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बाई 2 है, n स्क्वायर प्लस n बाई 2, ठीक है। तो यू कैन सिंपली राइट इट आउट एज n टू द पावर n प्लस 1 बाई 2। तो आपको समझ में आ गया कि सिमेट्रिक रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले आप सिंगल सिंगल वाले एलिमेंट्स को ऐसे ही लिख लो, ठीक है, 1 1 2 2 डॉट 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 n एलिमेंट ऐसे हो गए, बाकी बचे n स्क्वायर माइनस n। इसमें से आपने इसको पेयर किया, पेयर करने के लिए जस्ट आपने 2 पार्ट्स 2 से डिवाइड कर दिया, अब पेयर बन गए। दो इन पेयर के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस, जिसमें से कि दोनों प्रेजेंट या दोनों एब्सेंट आपके फेवर में है, यानी कि 4 में से 2 चॉइसेस आपके फेवर में है, तो उसको 2 के पावर चढ़ा दिया, 2 के पावर इतने एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो ये आपके सिमेट्रिक नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। अब एसिमेट्रिक, ठीक है, एसिमेट्रिक देखते हैं क्या होता है। तो ये पार्ट तो सेम है। एसिमेट्रिक में आपको पता होगा ये तो प्रेजेंट ही नहीं होने चाहिए, ठीक है, 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 ये प्रेजेंट ही नहीं होने चाहिए। क्यों, अगर ये प्रेजेंट हो गए तो आपका रिलेशन एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, बट नॉट एसिमेट्रिक। बट अब आपके वही पेयर वाली रीजनिंग में आते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो तब तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। एसिमेट्री के लिए क्या आपको फेवर करता है, या तो दोनों एब्सेंट रहें या कोई एक प्रेजेंट रहे। तो इन 4 में से अब आपके 3 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो एसिमेट्री को फेवर करते हैं, ठीक है। तो इनको 3 चॉइसेस, ठीक है, 3 चॉइसेस मल्टीप्लाइड हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 टाइम्स, ठीक है। तो सिंपली क्या हो गया, 3 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, ठीक है, 2 टू द पावर, यानी कि 3 चॉइसेस को आपने हाउ मेनी टाइम्स यू हैव मल्टीप्लाइड 3, ठीक है, इतने चॉइसेस हो गए आपके पास, ठीक। तो 3, और बाकी इनके साथ क्या चॉइसेस हैं, सिंगल चॉइस, ठीक है, सिंगल चॉइस यानी कि 1 1 हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है। तो 1 को n नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रिजल्ट आएगा, बाकी ये 3 के पावर हमने चढ़ा दिया n इंटू n माइनस 1 बाई 2, ठीक है। तो दीज मेनी एसिमेट्रिक रिलेशंस आर पॉसिबल ऑन अ सेट विद कार्डिनैलिटी n, ठीक है। अब ऐसे ही आप बाकी के रीजनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सपोज ये आपको सेट गिवन है, उसकी कार्डिनैलिटी गिवन है, तो आप नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ये सारे नंबर ऑफ रिलेशंस आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दिस वे हाउ टू ओके, सो अभी लेट अस डिस्कस क्लोजर, ठीक है। तो क्लोजर इन अ नेक्स्ट लेक्चर, just let me stop here.